Good morning, students. Let us today we will learn the third lesson, that is you can see here directions, directions. Okay, it is called directions. Which are the directions? Not we will not see directly directions. First we have to see the starter kit which you have given here for your more understanding that what is meant by directions and how do we say these all names with its directions. Okay students, so let us see the starter kit. Look at this picture of Lucy. Here you have given the picture of one girl and her name is Lucy. Okay, इसका नाम क्या है? लूसी है. Look at this picture. It means look at this girl Lucy. You have asked some of the questions here. So you have to observe this picture carefully and give the answer of these questions. Question number first. What is in her right hand? In right hand. Which is the right hand? You can see this Lucy carefully. Not your right hand. Okay students. So you have to observe this girl's Lucy's right hand. It means this is her Lucy's right hand. Okay. And what is in her hand? Which right hand? This right hand. You can see in her hand one apple fruits. Okay, it means in her right hand we can see here apple. Okay, so you have to write here answer apple, APPLE, apple. Then second question you have given here, what is in her hand? What is in her left hand? Not only hand but also left hand. So which is the Lucy's left hand? You can see this is the left hand of this Lucy's. So what is in her left hand? We can see in her left hand is a doll. ओके तो उसकी उस लूसी के लेफ्ट हैंड में हम क्या देख रहे हैं? डॉल का पिक्चर्स देख रहे हैं. सो राइट हियर डॉल स्पेलिंग. नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन यू हैव गिवन हियर, व्हाट इज इन हर फ्रंट? व्हाट इज इन हर फ्रंट? उसके आगे क्या है? कैट. सो यू हैव टू राइट हियर कैट. देन लास्ट है व्हाट इज एट हर बैक? उसके पीछे क्या है? वी कैन सी द पिक्चर ऑफ डॉग एट हर बैक. इट मीन्स माय डियर स्टूडेंट्स, हियर यू हैव अंडरस्टैंड दैट in this Lucy's right hand, left hand, in front of and at the back, it means four directions or four side we can see some of the things. But here we will learn that about the directions, that how do we call it these all directions. My dear students, तो हम आज इस लेसन में डायरेक्शंस के बारे में सीखने वाले हैं. जो 4 डायरेक्शंस हम बोलते हैं ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ, तो वही डायरेक्शन हम यहाँ पे सीख रहे हैं. तो फर्स्ट आपको यहाँ पे जो पिक्चर दिया है लूसी का, तो उस लूसी के राइट हैंड में क्या है, लेफ्ट हैंड में क्या है, आगे क्या है, पीछे क्या है, ऐसे आपको कुछ क्वेश्चन यहाँ पे आस्क किए हैं, पूछे गए हैं. तो आपने इसका आंसर भी दिया करेक्टली कि राइट हैंड में उसके एप्पल है, लेफ्ट हैंड में डॉल है, आगे उसके कैट है और पीछे डॉग है. इट मीन्स ऐसे जब भी हम बोलते हैं ना, हमारे आगे क्या है, हमारे पीछे क्या है, हमारे राइट साइड में क्या है, लेफ्ट साइड में क्या है, तो ये जो सारे साइड्स है तो उन साइड्स के लिए एक फिक्स नाम है, स्पेशल नेम्स है. ओके तो वो जो स्पेशल नेम्स होते हैं उसी को हम बोलते हैं डायरेक्शंस. दैट इज ईस्ट वेस्ट साउथ एंड नॉर्थ. दीज आर द डायरेक्शंस ऑफ दिस 4 साइड. ओके स्टूडेंट्स, होप्स यू अंडरस्टैंड. दीज आर डायरेक्शंस. सो now let us we will learn details about these directions. So now get set. Look, the sun is rising. The sun always rises in the east. It rises in the morning. It sets in the evening. It always sets in the west. It means in this page number 21 you have given about the sun information. And what is the sun? Yes, sun is our planet. Okay, so look here, the sun is rising. In this picture you can see the sun is rising. But in which side sun rising? The sun always rises in the east. हमेशा ये जो सन होता है ना, जो सूरज होता है ना, वो हमेशा ईस्ट की तरफ, इट मीन्स पूरब की तरफ ही उगता है. ओके स्टूडेंट्स, सो यू शुड रिमेंबर दैट सन राइजेस इन द ईस्ट ऑलवेज. इट नेवर चेंज. ये हमारा जनरल ट्रूथ है कि हमेशा जब भी हम देखेंगे, मतलब हम छोटे बचपन हो या फिर बड़े होंगे या फिर बूढ़े होंगे, इट मीन्स ऑलवेज इन आवर होल लाइफ वी कैन सी द सन राइजेस इन द ईस्ट साइड. देन इट राइजेस इन द मॉर्निंग. अब वो कब राइजेस होता है? तो मॉर्निंग के टाइम में राइजेस होता है. ये जो सूरज होता है ना, वो जब भी उगता है तो वो सिर्फ और सिर्फ मॉर्निंग के टाइम में ही सूरज उगने लगता है. सो हियर यू हैव गिवन इट राइजेस इन द मॉर्निंग.
देन इट सेट्स इन द इवनिंग। अभी वो सूरज जब मॉर्निंग में उगता है, ईस्ट साइड की तरफ उगता है, तो वो सनसेट कब होता है? इट मीन्स सूरज जो है वो सूरज डूबने कब लगता है? इट सेट्स इन द इवनिंग। इवनिंग का जो टाइमिंग होता है उस इवनिंग के टाइम में सूरज डूबने लगता है। अब ये सूरज डूबने की साइड कौन सी है? लुक एट सी हियर, इट ऑलवेज सेट्स इन द वेस्ट। सूरज जब भी डूबता है तो वो हमेशा वेस्ट साइड में ही डूबता है। तो ये दो जो डायरेक्शंस आपको बताए गए हैं डियर स्टूडेंट्स, ईस्ट एंड वेस्ट। So you should remember and you can understand that always sun rises in the east and sun sets in the west. सूरज उगने की जो डायरेक्शन है वो हमेशा ईस्ट की तरफ होती है और सूरज डूबने की जो डायरेक्शन है वो हमेशा वेस्ट साइड में होती है। सो यू शुड रिमेंबर दैट सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सन सेट्स इन द वेस्ट, बट विच टाइम? इन द मॉर्निंग सनराइज एंड इन द इवनिंग सन सेट्स। सो यू शुड रिमेंबर दिस एंड लेट अस वी विल सी ऑन द नेक्स्ट पेज नाउ। द ऑपोजिट ऑफ ईस्ट इज वेस्ट। ईस्ट साइड जो है, ईस्ट डायरेक्शन जो है, उस ईस्ट डायरेक्शन की ऑपोजिट साइड होती है वेस्ट। ओके, ईस्ट एंड वेस्ट, दिस इज अ डायरेक्शन और ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, सो द ऑपोजिट ऑफ नॉर्थ इज साउथ। नॉर्थ का ऑपोजिट क्या होता है? फिर साउथ होता है। ओके, ईस्ट का ऑपोजिट वेस्ट होता है और नॉर्थ का ऑपोजिट साउथ होता है। देन ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, these four are directions, and east, west, north and south, these four directions we will see in our life. So do you know how to find these directions? क्या आपको पता है ये डायरेक्शंस हमें कैसे पहचाननी चाहिए, कैसे फाइंड आउट करना है कि कौन सी साइड ईस्ट है, कौन सी साइड वेस्ट है, कौन सी नॉर्थ और कौन सी साउथ है? तो वो डायरेक्शन हमें फाइंड आउट करने के लिए एक छोटा सा आपको गेम खेलना है। सो लेट अस वी विल प्ले। दिस इज़ वेरी इजी टू फाइंड डायरेक्शंस। बहुत ही आसान तरीका है कि हमें किस तरह से डायरेक्शंस को फाइंड आउट करना है। लुक एट द राइजिंग सन। जब भी हम सनराइज होने वाली साइड पे देखते हैं, देखो सनराइज किस साइड में होता है? ईस्ट साइड में होता है, EAST, ईस्ट। और कब होता है? तो मॉर्निंग में होता है। तो आपको करना क्या है बच्चों? आपको साइड फाइंड आउट करने के लिए, डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए आपको सनराइज जो होता है ईस्ट साइड में, तो उसकी तरफ मुँह करके खड़े होना है, लाइक दिस बॉय। ओके, यू कैन सी दिस बॉय ऑल्सो स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द सन। ओके, तो इस बॉय की तरह जहाँ जिस साइड में सनराइज होता है उसकी तरफ आपको देख के खड़े होना है। देन स्टैंड विथ योर फेस टू इट। आपका फेस उस सनराइज की तरफ होना चाहिए, इसकी तरह आपको भी खड़े होना है। लेट अस नेक्स्ट, टू योर लेफ्ट इट इज़ नॉर्थ। लेफ्ट साइड, अभी आप सनराइज की तरफ आपने फेस किया है आपका और आप खड़े हो चुके हो, तो इसी पोजिशन में आपकी जो लेफ्ट साइड है, सनराइज के फेस की तरफ आप जब खड़े हो तो उस पोजीशन में आपकी जो लेफ्ट साइड है वो होती है नॉर्थ की साइड। ओके स्टूडेंट्स, सो सन लेफ्ट साइड इज नॉर्थ एंड राइट साइड इज साउथ। टू योर राइट साइड इट इज साउथ, टू द साइड ऑफ द सन इट इज ईस्ट एंड टू द ऑपोजिट साइड ऑफ दिस इट इज वेस्ट। तो इट्स सिंपल वे में आपको समझाती हूँ कि आपको करना क्या है। जब भी आपको डायरेक्शन फाइंड आउट करना है कि अभी किसी नए जगह पे आप जाते हो तो वहाँ पे आपको समझ में नहीं आता है कौन सी साइड ईस्ट है, कौन सी वेस्ट है, कौन सी साउथ और नॉर्थ है, तो उसको फाइंड आउट करने के लिए आपको सिर्फ एक ही काम करना है। आपको फर्स्ट देखना है कि सन राइजिंग किस साइड में होता है। ओके बच्चों, तो जिस साइड में सनराइजिंग होता है उसकी तरफ आपका फेस करके आपको वहाँ पे खड़े होना है। अभी जो सनराइज होने वाली साइड है वो तो हो गई हमारी ईस्ट साइड, क्योंकि ऑलवेज सनराइजेस इन द ईस्ट, क्योंकि इस साइड में ही हमेशा सनराइजेस होता है। सो दैट इज अवर ईस्ट साइड। देन ऑपोजिट, ईस्ट ऑपोजिट वेस्ट, इट मीन्स हमारी जो बैक साइड होती है वो कौन सी आएगी? फिर वेस्ट साइड आएगी। एंड वेस्ट साइड ऑलवेज सनसेट। ओके, तो ये जो सूरज होता है वो वेस्ट साइड में हमेशा डूबने लगता है। सो जब भी आप सनराइजेस की तरफ फेस करके खड़े होते हो तो आगे वाली साइड हो गई ईस्ट और हमारे पीछे वाली जो होती है वो हो गई वेस्ट। अब हम जैसे खड़े हैं उसी एंगल में आपको क्या करना है? आपका जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट हैंड है, उस लेफ्ट हैंड की जो साइड होती है उसको हम बोलेंगे नॉर्थ साइड। एंड जो राइट हैंड होगा हमारा, उस राइट हैंड की साइड वाली को हम बोलेंगे साउथ साइड। ओके, तो इस तरह से आपको आपके डायरेक्शन फाइंड आउट करना है। सो यू हैव टू रिमेंबर लाइक दिस। ओके, सो लेट अस सी द नेक्स्ट पेज नाउ। देखो अभी हमने जान लिया कि किस तरह से हमारे डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है, तो देखेंगे थोड़ा डिटेल्स में और कि किस तरह से ये सनराइज होता है, सनसेट होता है, या सूरज किस तरह से दिखता है, या फिर वो उसकी प्रोसेस किस तरह से होती है। ये बातें हम अभी यहाँ पे सीखेंगे। इन द मॉर्निंग द सन इज़ इन द ईस्ट। मॉर्निंग टाइम में सन हमेशा ईस्ट की साइड में होता है। इन द इवनिंग इट इज़ इन द वेस्ट। इवनिंग के टाइम में वो हमेशा वेस्ट की साइड में होता है। इट मूव्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट।
विच मूव्स, यस, सन मूव्स फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। ये जो सन सूरज होता है ना, वो ईस्ट साइड से लेकर वेस्ट साइड में ऐसे होता है, मूव करता है, मूवमेंट करता है। बट डू यू नो द सन डज नॉट मूव। पर क्या बच्चों आपको पता है सूरज कभी भी घूमता नहीं है। आपको दिखाई देता है कि क्या होता है, सूरज ईस्ट साइड में आता है, फिर वो ऊपर 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 आके वेस्ट साइड में उसका सनसेट होता है। मतलब ईस्ट साइड में सूरज उगता है और फिर वेस्ट साइड में जाके वो सूरज डूबने लगता है। तो ये जो प्रोसेस हम देखते हैं, हमें क्या लगता है कि सूरज ही घूम रहा है, ईस्ट साइड से लेकर वेस्ट साइड में जाता है, फिर ईस्ट में आता है, फिर वेस्ट में जाता है। इस तरह से सूरज हमें घूमता हुआ दिखाई देता है। पर रियल में ऐसा है बच्चों कि सूरज कभी भी घूमता नहीं है, सूरज एक ही जगह पे खड़ा रहता है। तो कौन घूमता है फिर? Let us see here now. But do you know the sun does not move? क्या आपको पता है सूरज कभी घूमता नहीं है? It is the earth that moves. वो तो पृथ्वी है जो सूरज के सामने घूमती है। ओके, घूमने वाली कौन है? पृथ्वी है। This is the earth and this earth always moves around the sun. ओके, तो सूरज एक ही जगह पे खड़ा रहता है, वो कभी भी घूमता नहीं है। तो घूमता कौन है? अर्थ घूमती है, इट मीन्स पृथ्वी घूमती है। इट इज़ द अर्थ दैट मूव्स, वो तो पृथ्वी है जो घूमती है। इट गोज़ राउंड एंड राउंड, वो हमेशा राउंड राउंड घूमती हुई दिखाई देती है। इट गोज़ राउंड इटसेल्फ, वो पृथ्वी जो होती है ना, वो खुद के ऊपर भी घूमती है। मतलब वो पृथ्वी खुद के सामने घेरे लगाती है। जिस तरह से हम गोल गोल घूमते हैं ना बच्चों, तो उसी तरह से ये पृथ्वी भी खुद के सामने गोल गोल घूमती है और फिर इस सूरज के सामने भी गोल गोल घूमती है। यू कैन सी इट इन दिस पिक्चर। दिस इज पृथ्वी एंड दिस इज अर्थ एंड दिस इज सन। So this earth round goes round the sun and also itself. तो ये पृथ्वी जो होती है, वो पृथ्वी खुद के सामने भी गोल गोल घूमती है और फिर इस सूरज को भी चक्कर लगाती है, घेरे लगाती है। ओके, इट मीन्स घूमने वाली कौन है? अर्थ है, नॉट सन। ध्यान में रखना है, सूरज कभी भी नहीं घूमता है, तो घूमने वाली पृथ्वी है। और ये अर्थ जो है, वो अर्थ किस तरह से घूमती है? पहले तो वो खुद के सामने ही ऐसे चक्कर लगाती है और फिर वो सूरज के सामने भी ऐसे गोल गोल राउंड राउंड चक्कर लगाती है। सो इट गोज़ राउंड एंड राउंड, इट गोज़ राउंड इट सेल्फ, इट ऑल्सो गोज़ राउंड द सन। इट मीन्स ये जो अर्थ है, वो अर्थ खुद के सामने भी घूमती है और इस सूरज के सामने भी ऐसे गोल गोल चक्कर लगाती है। ओके, सो लेट अस सी द नेक्स्ट। बट वी डोंट फील दिस मोमेंट। पर बच्चों आपको पता है, अगर हम बोलेंगे अर्थ घूमती है, पृथ्वी घूमती है, तो हम भी उस पृथ्वी के ऊपर रहते हैं और पृथ्वी घूमने लगी तो हम भी किस तरह से घूमेंगे ना, ऐसे लगता है। पर होता क्या है बच्चों कि ये पृथ्वी जो है ना, वो बहुत बड़ी है, इसलिए हमें उसका फील नहीं होता। उसका मूवमेंट जो होती है ना, वो गोल गोल घूमने की, तो वो गोल घूमने की जो मूवमेंट है वो हमें समझ में नहीं आती है, क्योंकि वो पृथ्वी बहुत बड़ी है। ओके, उसका एक हम बहुत छोटा पार्ट है, जिसकी वजह से हमें उसका समझ में नहीं आता मूवमेंट किस तरह से वो गोल घूमती है। बट वी डोंट फील दिस मोमेंट, इट इज़ बिकॉज द अर्थ इज़ सो बिग। ये अर्थ जो होती है, ये जो पृथ्वी होती है, वो बहुत बड़ी है, इसकी वजह से हमें उसकी मूवमेंट का कुछ भी पता नहीं चलता। द सन इज़ मच बिगर बट इट लुक्स सो स्मॉल। सन भी उससे बड़ा है। सन जो है ना, ये सूरज जो है ना, वो पृथ्वी से भी बड़ा है। देखो बच्चों, अभी पृथ्वी इतनी बड़ी है, फिर सूरज तो उससे भी बड़ा है। यू कैन सी इट इन दिस पिक्चर ऑल्सो। सूरज उससे भी बड़ा है, पर वो सूरज हमें बहुत छोटा दिखाई देता है, क्योंकि सूरज हमसे बहुत दूर है, बहुत दूर, बहुत कोसों लंबे दूर हमारे ऊपर वो सूरज हमें दिखाई देता है, इसलिए वो हमें पृथ्वी से छोटा दिखाई देता है। ओके, द सन इज़ मच बिगर, सूरज भी बहुत बड़ा है, बट इट लुक सो स्मॉल, वो हमें बहुत छोटा दिखाई देता है। इट इज़ बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी फार अवे फ्रॉम अस, बिकॉज वो जो सूरज है वो हमसे बहुत दूर है, इसलिए वो हमें छोटा दिखाई देता है। एंड पृथ्वी जो है वो भी बहुत बड़ी है, इसलिए उसकी जो मूवमेंट होती है घूमने की सूरज के आगे, तो वो घूमने की जो मूवमेंट है वो हमें समझ नहीं आती, क्योंकि पृथ्वी भी बहुत बड़ी है। ओके स्टूडेंट्स, सो होप्स यू अंडरस्टैंड। हमने सीखा कि किस तरह से डायरेक्शन को फाइंड आउट करना है और कौन कौन से डायरेक्शन होते हैं, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, नॉर्थ, ये हमारे डायरेक्शंस है। ईस्ट का ऑपोजिट वेस्ट होता है, साउथ का ऑपोजिट नॉर्थ होता है। और जब भी हमें ये डायरेक्शंस को फाइंड आउट करना है, तो हमें पहले क्या करना है, हमारा फेस ईस्ट साइड में, इट मीन्स सूरज उगने वाली साइड में हमें हमारा फेस लेके खड़ा रहना है। फिर हमारी बैक साइड होगी वेस्ट, हमारा लेफ्ट साइड होगा नॉर्थ एंड राइट साइड होगा साउथ। तो इस तरह से आपका डायरेक्शंस फाइंड आउट करना है। और फिर हमने देखा कि जिस साइड में सूरज उगता है तो वो साइड हमेशा ईस्ट की होती है, और जिस साइड में सूरज सनसेट होता है तो वो साइड हमेशा वेस्ट होती है।
अभी ये सूरज जो है वो ईस्ट से लेकर वेस्ट तक क्या होता है, हमें जाता हुआ दिखाई देता है। फर्स्ट ईस्ट में आता है, फिर वेस्ट में जाता है, सूरज उगता है, फिर डूबता है। इस तरह से डेली जो रूटीन हमारा हम देखते हैं, तो इससे हमें ऐसा दिखाई देता है कि सूरज ऑलवेज घूमता है ना। सूरज डेली क्या करता है, इधर से आके उधर जाता है। बट रियल में ऐसा है कि सूरज कभी भी घूमता नहीं है, सूरज एक ही जगह पे रहता है। घूमने वाला कौन है, पृथ्वी है और अर्थ है। वो अर्थ ही है जो हमेशा घूमती है। और अर्थ किस टाइप से घूमती है, फर्स्ट तो वो अपने आप के ऊपर घेरे लगाती है, चक्कर लगाती है, और फिर उसके बाद सूरज के आगे चक्कर लगाती है। इस तरह से वो पृथ्वी सूरज के आगे घूमती है, इसीलिए हमें सन हमें घूमता हुआ दिखाई देता है। बट अभी ये जो प्रोसेस होती है, सूरज एक जगह पे खड़ा है, इतना बड़ा है, फिर पृथ्वी उसके सामने घूमती है। अगर पृथ्वी घूमती है तो वो हमें दिखाई क्यों नहीं देता, क्योंकि पृथ्वी हमसे बहुत बड़ी है, इसलिए उसकी मूवमेंट हमें समझ में नहीं आती। और सूरज भी हम उससे ज़्यादा बड़ा है, इसलिए वो सूरज हमें छोटा दिखाई दे, सॉरी सूरज बहुत बड़ा है पर वो हमसे बहुत दूर है, बहुत दूर, इसलिए वो हमें बहुत छोटा दिखाई देता है। इस तरह से इस लेसन से हमने ये सारी बातें सीखी है। सो होप्स यू अंडरस्टैंड एंड यू हैव टू रीड दिस लेसन एट योर होम। ओके स्टूडेंट्स, सो वी शैल स्टॉप हियर नाउ। थैंक यू।